नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग पर। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। करीब 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मना रहे हैं। दुनिया भर में योग और ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों समेत देश के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और योग अभ्यास किया। इस बार योग दिवस समारोह की थीम वसुधैव कुटुंब के लिए योग है। जी टीना, इस बार का योग दिवस जो है वो खास मायने रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी इस समय अमेरिका में हैं और कुछ ही देर में यूएन में एक खास कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। That's right. Thank you, Manoj. Hello and welcome viewers to this special broadcast on Sansad TV. I am Tina Jha. As my colleague rightly said, the theme of International Day of Yoga this year is Yoga for Vasudhaiv Kutumbakam. Now, this theme beautifully encapsulates the vision, the aspiration of India, which is one world, one family, one future. That's also the theme with which we are going with our G20 presidency. How collective is this spirit? How has yoga been an important force in uniting the world is something that we will discuss with two special guests who are joining me on the program. I'm pleased to welcome former Ambassador S.R. Tayal. Thank you, sir, for your time, and thank you. Welcome to Sansad TV. We also have with us Dr. Pawan Kumar, Assistant Professor, Yoga Education, Morarji Desai National Institute of Yoga. Dr. Kumar, thank you for your time as well. Let me begin with you first. How significant is yoga for humanity? I recall last year, the theme was Yoga for Humanity. This year, we take it one step forward. We say Yoga for Vasudhaiv Kutumbakam. If we combine both, tell us about how significant it is for humanity. Yes. The humanity and the Vasudhaiv Kutumbakam is the same meaning. As our scripture said that, Ayam Nijaha Paraveti, Gadana Lagu Chetasam, Udara Charitanam tu Vasudhaiv Kutumbakam. That is, I am best and another one is not best. It is the narrow-minded thinking. But Indian culture and scripture said that we are the same. Like it is not like I great and someone is not great. So that this is the feelings and this is the emotions of the greatness of our scriptures, and the yoga said that all the corners of the globe is like a family. So the G20 slogan is also, you have said that one earth, one family and one future. So previously our scriptures are well defined this before the we celebrated Yoga Day from 2015, and it is long journey to. You're right. In fact, yoga, Ambassador, is derived from the Sanskrit word yuj, which actually means to unite, to connect. How has yoga turned into that connecting force, especially in this deeply divided world that we are talking about? How do you think yoga has emerged as that uniting force? Yoga, of course, is a uniting force, and it is a spiritual force as well as a force to de-stress and for general well-being. If a person is generally happy, I think his thinking will be less mischievous. Now, at a global level, what I have seen in my career, that yoga was always known and popular in most parts of the world, but in very narrow circles. People who had been to India or they had experienced it, they were practicing it and they were trying to spread whatever they have learned. But the way International Yoga Day is now has been established in 2015, and the way all our embassies, cultural centers, and in United Nations Prime Minister himself is there today, the way it is being propagated, the word is being spread. People are more curious. They are responding, and this will become a great positive unifying force for the humanity as a whole, following the Vasudhaiv Kutumbakam principle of our scriptures. जी बिल्कुल टीना, योग ने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है, मानवता की बेहतरी के लिए काम किया है
और आज का दिन जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है तो भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं। ये वही स्थान है जहां पीएम ने वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को बधाई दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मकता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। अनकोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अनकोट। यह भावना भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को विश्व के समक्ष रखी। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक समर्थन मिला और नतीजन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को कितने कम समय में दुनिया के इतने देशों का एक पटल पर आना, एक सोच को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री की भावना का आदर करना, वो 11 दिसंबर 2014 को फलीभूत हुआ और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विधिवत घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की। हर मायने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग के लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग
एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। Minister Narendra Modi's message on the International Day of Yoga. In just a short while from now, the Prime Minister will be leading the Yoga Day celebrations at the United Nations headquarters in New York. He will be joined by representatives of as many as 180 countries, which will make the event more historic. Ambassador, coming back to you, the Prime Minister termed yoga today as a global movement, something that he said India has always embraced yoga as a force because it unites, it embraces, it adopts. This is the spirit that we want the world to adopt. And we've seen unprecedented popularity that yoga has gained over the last few years, also in the wake of the pandemic that we've seen, in the conflict that has happened and the world, the kind of violence that we've seen. Do you think yoga today has become a testimony of India's soft power? India, of course, it is a testimony of India's soft power, but perhaps in today's troubled world, where there are so many tensions, so many conflicts, so many differences, the whole idea which yoga in different forms propagates is a very positive message that bring the people together, unite. Yoga itself means uniting, and it has a calming effect on the body, on the mind, and try even say people of different faiths, they all come together for yoga because it's ultimately it is like a physical exercise or kind of a mental exercise. So that itself is a very great message of unity when we see so many divisions based on caste, creed and religion, etc. So this strong message going from India that yoga is something which can unite. That's why it had such a positive resonance. As the Prime Minister said, more than 181 countries co-sponsored that resolution, which talked about making International Yoga Day. So that is the positivity, and that is the strength of ancient India, India's civilization, India's cultural heritage, and that is what is coming forth in this International Yoga Day. जी बिल्कुल पवन जी, आप कैसे देखते हो कि ये कहा जाता है कि योगा जो है वो सकारात्मक विचारों का संदेश देता है और यह माना जा रहा है कि योग दुनिया को जोड़ता है और भारत ने दुनिया को मानवता के लिए जो काम किया है वो सबके सामने है और योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है। इस संदेश को आप कैसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के योग की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या कहना है आपका इस? जी बिल्कुल, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को जो बल दिया है और उसको मानवता के लिए समर्पित करते हुए उसको बल दिया है और यूएन में उसको विचार रखा, पारित हुआ और 2015 से हम योग दिवस मना रहे हैं। सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो योग का अर्थ ही जुड़ना है। वह जुड़ना अपने आप से भी है, आत्म स्तर से भी है और विश्व को एक परिवार के रूप में भी जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह योग हमें प्रदान करता है। इसमें हम बहुत सारे आयामों को देख सकते हैं। जैसे योग को हम शारीरिक स्तर से जोड़ सकते हैं, अपने मानसिक स्तर से जोड़ सकते हैं, अपने बौद्धिक स्तर से जोड़ सकते हैं, सामाजिक और जो भी विज्ञान के तंत्र में काम करने वाले लोग उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं। तो योग एक व्यापक अर्थ है, वो व्यक्तिगत भी है और वह विश्व के लिए भी उतना ही महत्व रखता है, उसकी उतनी ही गरिमा है। तो मेरा तो यही मानना है कि योग अगर व्यक्ति से शुरू होता है तो वह समाज और विश्व कल्याण के हित में ही वो समर्पित होता है। आप हमारे बीच बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं जिनका जीवन ही समर्पित रहा है समाज कल्याण के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए। तो ये वर्ष तो और भी हमारे लिए अच्छा है कि हम इसको एक विश्व को बंधुत्व में बांधने के लिए योग को प्रधानमंत्री जी ने आवाहित किया है, उसका थीम दिया है और उसके लिए वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं।
पूरा देश उनको हृदय से लगाने के लिए आतुर रहता है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, तो ये सारी सीमाओं को हटाकर एकत्व लाता है। We'll come to how this journey of reluctance to acceptance has happened, how yoga has traversed this journey just a while. Meanwhile, we're being joined by my colleague Akhilesh Suman, who he joins us live from Kartavya Path. Akhilesh, a very good evening. So while we wait for the Prime Minister to lead the Yoga Day celebrations in New York at the UN headquarters, tell us about what has happened through the day in the national capital. How have the Delhiites, the citizens of Delhi, celebrated yoga? And what is the kind of fervor that you saw, especially among the youngsters? You know, Tina, not only Delhi, but all over the country, you know, all the ministers participated in yoga. Actually, they led yoga at different centers. I can tell you right from Giriraj Singh to Piyush Goyal to whatever minister, you know, everyone is in the field. And not necessarily in their home state, but in different states. So I think this yoga celebration is part of India's broader diplomacy, not only towards the world, but also towards the country. Because, you know, that in Corona period, Prime Minister Narendra Modi himself, you know, had been treating to increase our immunity. And for increasing our immunity, he was always, you know, advising people to apply the, you know, what are the therapies, national therapies, and what the, you know, indigenous therapy is yoga. And that is why, you know, in Delhi also, in different ministries, even in the parliament, everywhere, you know, large number of people participated in yoga. People also came with their family in different offices and they participate. So I think it's like a celebration, and celebration of our ancient knowledge, but in modern way. You know, everyone is coming with the T-shirt, yoga dedicated T-shirt with their own mats, and they are sitting together. They are exercising the whole you know, procedure of yoga. And you know that Vice President himself was in Jabalpur. So all over the country, yoga celebrated. And as far as you know that international scenario is concerned, even in Geneva, yoga was celebrated at 7 a.m. in the morning, where also one of our permanent missions is situated. And in New York, we will see at around 5:30 Indian time, yoga will be celebrated, and around 180 countries are participated at different level, either from the level of diplomacy or from the level of people from different walks of life. Maybe some ministers also will participate from different countries, and it is being kept secret that who all are participating. But we will see around 5:30 that what is happening here. And in that way, India has made this time a big overture when Prime Minister Narendra Modi is on his first state visit to America. And in this visit, he is also going to tell people that, you know, at a time when the world is facing, you know, Russia-Ukraine conflict, and in this period, what can be the thing, what can be one of the therapies that can keep the people together, because governments always find time to, you know, diplomatic maneuver, but it's a time when, you know, you need to outreach to the people. And I think Prime Minister Narendra Modi and Indian government, this exercise of yoga is going to give a big message. And I was hearing United Nations Secretary you know, message that he was telling that yoga is one of the things that can unite the world, that can calm the people, and that can also give the message of peace and you know, brotherhood among nations. So I think we are waiting and watching that what will happen in New York, and how we will see that how yoga is being celebrated in New York today, you know, morning, Tina. जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो इसके खास मायने हैं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, और ऐसे में योग दिवस का कार्यक्रम, क्या संदेश प्रधानमंत्री जी का होगा, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हों। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने आज संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग समस्त मानवता की अनमोल विरासत है और योग ने समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग का संचार किया है। और आज भारत पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है। पूरे विश्व में शांति रहे, स्थिरता रहे,
पूरा विश्व के अंदर लोग स्वस्थ रहें, मानसिक स्वस्थ रहें, शारीरिक स्वस्थ रहें, इसके लिए हमने योग को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाई है और इसकी विश्वव्यापी, सर्वव्यापी हम सबके प्रयासों से, पूरे विश्व के प्रयासों से आज योग सबका है, सर्वव्यापी है। हम दुनिया के अंदर कह सकते हैं कि योग भी हमारी जीवन शैली है, स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है। मन, तन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आज विश्वव्यापी लोकप्रिय हो चुका है और जन जन का स्वस्थ रखने का एक प्रक्रिया हो चुकी है। और इसीलिए योग को समग्र क्रांति के युग के रूप में देखा जाता है और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इलनेस से वेलनेस की ओर जा रहे हैं और इसके लिए योग हमें समर्थ बना रहा है। इसलिए हम सब आज यहाँ पर योग के लिए पधारे हैं। निश्चित रूप से योग किसी पंथ विशेष को नहीं, पूरी मानवता को जोड़ने का काम करता है। So coming back to you, Dr. Kumar, the point that we were discussing before we went to Akhilesh and we heard the speaker's message is how yoga is part of our ancient tradition. There were efforts made in history from our yoga gurus who traveled far and wide to propagate the idea, the philosophy that yoga teaches. But there were contradictions, there was reluctance. Now we see that converting into a lot of acceptance. How has that happened? Has yoga's diversity been the biggest strength because of which it is seeing the kind of acceptance it is today? No, I don't think so. That it is some kinds of any barrier of yoga. Sometimes some mindset is being prevailed so that people not accepting the reality. And nowadays the globe are suffering some kinds of the problems like physical level, mental level, and when the introduction of yoga happens as an International Day of Yoga in 2015, people have got the results, they have got benefits from the yoga on the level of his physical and mental. So they have feel that we are in conflict in that in this condition and we have get free from the yoga. So they are accepting slowly and now very vastly on the whole globe. Mostly in Muslim countries also people are practicing yoga daily and lots of the Muslim teachers are yoga. I am also a coordinator of BSc Yoga here in Moraji Desai National Institute of Yoga, and we have 5 students from the foreign nationals and all 5 are the Muslim nationals from like Iran, Kazakhstan, Yemen like countries. They are coming here to pursue the knowledge about our ancient tradition like yoga, Ayurveda, and so the people are benefiting from this kinds of the systems, and so they are coming for the more education like that. Not it is a part of religions, it is a part of their betterment, for the betterment of whole globe and whole society. जी टीना, एक बड़ी बात उभर के सामने आई है। हालांकि पवन जी ने मुस्लिम शब्द का उपयोग करा, लेकिन अगर बात देखी जाए, कुछ देशों से सवाल जरूर उठे थे योगा को लेकर, लेकिन देखा जाए टीना तो धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब बात योगा को मजहब के हिसाब से, धर्म के आधार पर देखने की नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया को जोड़ने में योगा काम कर रहा है। वो चाहे मुस्लिम देश हो, गैर मुस्लिम देश हो, हर तरफ योगा का एक प्रभाव दिखाई देता है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं तायल साहब, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि कभी कभी ऐसा कुछ लोगों में एक अंदेशा होता है कि शायद भारत की जो प्राचीन सभ्यता से कोई चीज़ अगर निकली है तो उसका धर्म से कोई संबंध है, पर वो संबंध धर्म से नहीं होता है, वो कल्चर से होता है, वो संस्कृति से होता है, वो उस समय के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उन लोगों का क्या
सोच था उस समय, जो 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले थे। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो योगा तो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है वेलबीइंग के लिए, और मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए, और वो पूरी मानव जाति के लिए एप्लीकेबल है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के दिल में या कुछ ऐसा गलत फहमी थी, तो वो अब जिस तरह पूरे विश्व ने स्वीकार किया है योगा को, और इंटरनेशनल योगा डे, जैसा फिर पहले मैंने कहा प्रधानमंत्री का 181 देश, 2005 शायद 205 शायद मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, 181 ने उसको स्पॉन्सर किया। तो ये दिखाता है कि विश्व ने योगा की जो भी विधि है, विधान है, उसके पीछे जो विचार है, उसका जो लक्ष्य है, उसको स्वीकार किया है धर्म के ऊपर उठकर। That's what makes it a matter of immense pride, Manoj, for India, because it's an ancient tradition. We've been practicing it, we've believed in it, embraced and adopted it, and now we want the world to adopt and adapt to the practice of yoga. डॉक्टर कुमार, आपने मेंटल हेल्थ मेंशन किया, स्पेशली पैंडमिक के दौरान, और वो एक अनप्रेसिडेंटेड दौर था पूरी दुनिया के लिए। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू उभर कर आया पूरी दुनिया के सामने। उसमें योग का क्या योगदान रहा है अभी, और किस तरह से मेंटल हेल्थ का जो एरिया है, भारत में भी हम देख रहे हैं, खास करके काफ़ी यंगस्टर्स जिनकी नौकरियां चली गई, उन्होंने काफ़ी बुरा वक्त देखा, उसमें योग किस तरह से सहायक रहा? जी बिल्कुल। योग का जो मुख्य स्वरूप अगर देखें तो महर्षि पतंजलि ने जैसा कहा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ओरिजिनली जो योग काम करता है वो हमारे मन पर ही काम करता है, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो मन से ही जुड़ी हुई हैं। अगर मन में कोई समस्या होती है तो शरीर पर वो परिलक्षित होती है, उसको हम देख पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी सॉफ्टवेयर में कुछ कर दिया जाए तो मॉनिटर पर वैसा दिखता है, जैसा हम बोल रहे हैं और वैसा दिख रहा है। तो जैसा हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ स्वीकार करती हैं, ग्रहण करती हैं, वैसा ही रिफ्लेक्शन आता है, और वो रिफ्लेक्शन हमारे भावों में, विचारों में और शरीरगत उस पर पड़ता है। तो जो मानसिक स्तर है वह बहुत सारी समस्याओं से प्रभावित होता है। जैसे है, हमने कोविड के दौरान देखा कि जीवन और मृत्यु का एक दौर मनुष्य देख रहा था। उस दौरान योग ने उसको एक संबल दिया कि जो आप देख रहे हो ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर आप इसको, योग को अपने जीवन में थोड़ा भी अपनाएं तो आप देखते हैं कि शारीरिक स्तर से सुधार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मन शांत होना शुरू होता है, इंद्रियां समाभूत होने लगती हैं, वशीभूत होने लगती हैं। वैसे ही आप पाते हैं कि हम कुछ सामंजस्य पा रहे हैं, और उसी के आधार पर हम मन को नियंत्रित करते करते शरीर को भी अपने नियंत्रित कर लेते हैं, अपने विचारों को भी और भावों को भी। और इसमें बहुत सारी समस्याएं हमने ये देखी कि कुछ व्यक्तियों ने तो खबरें सुनकर भी उनके स्वास्थ्य में बड़ा दिक्कतें आई कि उनका कोई संबंधी था, सगा था, और पार्टिकुलर अभी उसकी एज भी नहीं थी ऐसी, और ऐसी गतिविधियां के दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो वो सुनकर भी मन पर बड़ा आघात लगा, और मन जब आघात लगता है तो वो सीधा शरीर को निगेटिविटी की ओर ले जाता है। और उस दौरान जो योग के हमारे अभ्यास हैं, इसमें हमने कहा है कि जो मन है अगर उसको ही संभाल लिया जाए, जैसा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हठ योग के ग्रंथ कहते हैं कि जो हमारा इंद्रियां हैं उनका स्वामी मन है, और मन को भी अगर आपको साधना है तो उसका स्वामी आपका श्वास प्रश्वास है। तो अगर आप श्वास प्रश्वास को भी साथ दें, अगर थोड़ा बहुत प्राणायाम भी आप नियमित कर लें, तो आप पाते हैं कि आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपका शरीर और सबल होता हुआ चला जा रहा है। और यही सबसे बड़ा योग में जो फिजिकल स्तर का लाभ है और जो मेंटल स्तर का लाभ है वो मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। आज पूरा विश्व इसी के सिद्धांत पर ही सारा का सारा योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अपनाते हुए चल रहा है। क्योंकि आप इतने लोगों को सिखाते हैं योग, एक और सवाल आपके उत्तर से ही निकल कर आता है। एक आम धारणा लोगों में है कि योग वो करते हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जिनकी अवस्था हो गई है या जो बीमार हो गए हैं, उसको हम एक वो हमारे आम जीवन का एक वो कहते हैं एक वे ऑफ लाइफ बन जाए। और ख़ास करके जो युवा वर्ग है, हम कोशिश करें कि बचपन से ही वो हमारा एक वे ऑफ लिविंग बन जाए। उसको आप कैसे परिवर्तित कर रहे हैं? उस तरह की धारणा जो खास करके हम देखते हैं हमारे देश में है कि वो वे ऑफ ट्रीटमेंट ना हो, वे ऑफ प्रिवेंटिव मेजर बन जाए कि हम बीमार ना हो। जी जी, योग का जो मुख्य स्वरूप है वह कोई
थेरेपी का उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चिकित्सा का कोई उसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब समस्याएं आती हैं और जब उसके चिकित्सीय लाभ आपको नजर आते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, योग का एक पक्ष चिकित्सा का भी है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि योग कोई भी कर सकता है, वो दुर्बल है, वृद्ध है, युवा है, बालक ही क्यों ना हो, क्योंकि सबको अपने अपने स्तर पर अपलिफ्टमेंट करना है। योग का उद्देश्य समाधि की प्राप्ति है, ना कि फिजिकल बॉडी की प्राप्ति, क्योंकि फिजिकल बॉडी एक आवश्यक अंग है। जैसा कि हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर हमें समाधि की ओर जाना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, हायर स्टेट की तरफ जाना है, तो शरीर को साधना बहुत जरूरी है। शरीर अगर फिट होता है, अगर हमारे पास कार अच्छी है तो यात्रा लंबी करी जा सकती है, दूरी तक जाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी हम आत्म की ओर चलेंगे। अब बाहर का विकास तो हम कर ही रहे हैं, आत्मिक विकास भी हम योग के माध्यम से, इस माध्यम से करते आए हैं। और ये हमारी पुरातन संस्कृति इसी की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वैसे ही अभी हम योग को शारीरिक स्तर से ही लेकर अब स्वीकार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरा विश्व, पूरी मानवता है उसको आत्मिक सुधार और विकास की ओर ले जाने में भी स्वीकार करेगी, अपनाएगी। और आगे दिन ब दिन हमारी पृथ्वी हो या हमारी मानवता हो और अच्छी होती चली जाएगी योग के जी। माध्यम से। पवन जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आज दुनिया के सामने चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो या डायबिटीज़ का मुद्दा हो या फिर बात हृदय रोग संबंधी बीमारियों की हो, अगर इस तरह की जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां आज के समय में देखने को आती हैं, उसमें योगा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, कैसे, और उसके परिणाम क्या सामने आए हैं? जी बिल्कुल। योग हमारे आजकल के जो जीवन शैली से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, उनके निदान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और उसके बहुत सारे शोध भी हुए हैं, उस पर कार्य भी चल रहे हैं हमारे देश पर। हमारे संस्थान में भी अनेकों शोध प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो डायबिटीज़ को लेकर के है, या तनाव के प्रबंधन को लेकर के है, या अवसादी आदि से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनको सुधारने के लिए बहुत सारे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी जो जीवन शैली के विकार के रूप में उत्पन्न हो रही, जो हमारी आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है कि हम बहुत कम शारीरिक कार्यों में संलिप्त होते हैं। ज़्यादातर हमारे कार्य बैठने के हैं या ऑफिस में रहने के हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ हमारे शारीरिक गतिविधियां नहीं हो पाती। और शरीर का एक ही लक्षण है कि अगर शरीर में कुछ मूवमेंट ना हो तो फिर उसमें कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तो सिस्टम्स हैं, लेकिन योग एक विशुद्ध सिस्टम है जिसमें कोई उसका नकारात्मक पक्ष उजागर नहीं होता। बाकी कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाएं या यदि दूसरे व्यायामों को अधिक कर लिया जाए तो कुछ हानियां होती हैं। लेकिन योग ऐसा है जिसमें आप अपने स्तर से जितना करें, क्योंकि शरीर की ही क्षमता है, उससे ज़्यादा वो करेगा नहीं, और शरीर उसको अलाउ करेगा उतना जितना उसकी क्षमता है। तो उस आधार पर जो योग अभ्यास है वो आपके, अगर हम आसन की बात करते हैं तो आसन हमारे जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे कहते हैं कि हमारे स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, ऑर्थोपेडिक जो डिसऑर्डर हैं, उनको ठीक करने में बहुत लाभकारी है। और प्राणायाम जो हमारी श्वसन संबंधी समस्याएं आई उसमें बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ इसके साथ एक और प्रक्रिया जिसको हम हठ योग में षट कर्म के आधार पर बोलते हैं, जिसमें 6 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उसके माध्यम से हम शरीर को शुद्ध करते हैं, जिसको हम बोलते हैं षट कर्म में धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नवली और कपालभाति। ये 6 प्रक्रियाएं हैं जिसको हम अगर उनमें से कुछ को धारण करें, वो पार्टिकुलर जो व्यक्ति होता है, रोगी होता है, उसके आधार पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन सामान्य अर्थों में ये शुद्धता लाता है। जैसे कि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो पहले स्वच्छता अनिवार्य है। तो योग में स्वच्छता के लिए, हमारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए, त्रिदोषों के साम्यता अवस्था लाने के लिए ही षटकर्मों का प्रयोग। फिर जब ये परिपूर्ण होता है तब हम धारणा और ध्यान आदि हायर प्रैक्टिसेस की ओर साधक को ले जाने का कार्य करते हैं। तो शरीर को साधना, शरीरगत बीमारियों, व्याधियों का निवारण कर लेने के बाद ही हम आगे की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम शारीरिक स्तर पर ही बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। You know, because of these benefits that you point out, or because of its diversity, Ambassador, we are seeing this kind of acceptance at such a large scale. It's unprecedented. You know, India's envoy to the UN was saying it's unprecedented, unheard to hear at such a large scale countries adopting another country's culture and heritage. And this is what, of course, makes it special for India, the fact that we propagate the idea of oneness, something that yoga propagates.
In a way, do you see yoga having lifted and popularized the Indian way of life, not just in America, where we have seen an increase in popularity, but also worldwide in several of these countries that were initially reluctant because they connected it to the Hindu tradition, but now because of the benefits and because of the diversity, they see the wider realm? You know, when I was in US, in so many cities you go and you find yoga centers everywhere. Like we find gyms here, yoga centers, books on yoga. But I was astonished that they were not saying that this yoga has come from India. The teachers will teach yoga as if God knows from where it has come. And some of them even tried to patent. They will make a little bit of change, that do yoga at a certain temperature, do yoga in a certain way, and they tried to patent it. So in that context, to have this International Yoga Day totally sponsored by India and propagated by India, Prime Minister of India leading in United Nations, this whole message goes all over the world that this practice which you may be doing, please understand that this is a gift of Indian civilization, a blessing of Indian seers and thinkers and practitioners of 3,000, 4,000 years ago for the entire mankind. So, I see it also from that perspective that sometimes our heritage is being taken away, being used. Okay, we are happy, but at least acknowledge that this has come from India. Absolutely. जी बिल्कुल टीना, बड़ी महत्वपूर्ण बात ताल साहब ने जो उठाया इस मुद्दे को आपने, मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात 2014 से पहले की करें, जाहिर तौर पे भारत की एक परंपरा पत्ती रही है योगा, जिसने दुनिया को योगा जैसा उपहार दिया, मानवता की एक बड़ी सेवा हुई, दुनिया को जोड़ने के लिए एक पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पहल का न केवल सम्मान कर रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी आज अपने संबोधन में इस बात को खास तौर पर कहा कि योगा की जिस तरह से स्वीकारता पूरी दुनिया में हुई है, वो भारत के लिए एक गौरवशाली विषय है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल रही है? देखिए, योगा तो एक प्राचीन विधि है, क्रिया है, और विश्व में लोग जानते थे पर बहुत कम लोग जानते थे। जैसे हमारी एम्बेसीज में कल्चरल सेंटर होते हैं, हर कल्चरल सेंटर में मैं 2 जगह एम्बेसडर था, एक योगा टीचर हमेशा होता था और उस बहुत पॉपुलर होता था। उनकी मतलब क्लासेस इतनी करनी पड़ती थी कि जगह ही नहीं होती थी। पर 2 बातें हुई। एक तो मैं समझता हूँ कि स्वामी रामदेव ने पूरे भारतवर्ष में जिस तरह योगा को पॉपुलराइज़ किया है, मैं उसकी बहुत मान्यता देता हूँ। भारतवर्ष के अंदर जगह जगह हज़ारों लोगों ने योगा करने का प्रयत्न किया, जो पहले समझते थे कि बहुत कम लोग करते हैं या योगी ही करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो प्रधानमंत्री ने किया 2014 के अपने प्रथम एड्रेस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और उसमें हमारे जितनी एम्बेसीज थी सबने अपने अपने देशों में जाके कहा कि देखिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, आप अपने डेलीगेशन को यूनाइटेड नेशन में कहिए सपोर्ट करें। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसका आया जो हम आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको इस ऊंचाइयों तक ले जाने में प्रधानमंत्री का बहुत ही ज़्यादा योग है, उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। पर मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर शायद स्वामी रामदेव जी ने बहुत काम किया है। Absolutely. So since 2014, there have been consistent efforts at the highest level by the embassies, by our missions abroad, to propagate the philosophy of yoga, how it's something that unites, and especially in this time when we are seeing a deeply divided world, how yoga has emerged as a strong force to unite the world. Manoj, in just a short while from now, we will see the Prime Minister leading the Yoga Day celebrations at the UN headquarters in the North Lawns, we are being told. Members from representatives from as many as 180 countries are expected to join the Prime Minister at the UN headquarters in the Yoga Day celebrations. We go back to our correspondent, Akhilesh Suman. Akhilesh, we've been discussing in the studio how
It's a matter of great pride for India to see members from 180 countries joining the Prime Minister in the Yoga Day celebrations at the UN headquarters for the first time. It's the 9th International Yoga Day. Tell us about the larger message. How do you see this unprecedented acceptance of yoga? It's an Indian tradition, an ancient Indian tradition being embraced by countries at such a large scale. Yeah, that is the most surprising element of this whole thing. Most surprising, I'm telling you, because you know that in September 2014, Prime Minister Narendra Modi, he had joined the government the same year, and he went for attending the first United Nations General Assembly, and there he spoke about yoga, and he proposed that the 21st June should be celebrated as International Yoga Day. And you know that 21st June is the longest day in the whole Northern Hemisphere. So there was a resonance. And after 1 year, it was accepted. So I think this is a thing that something was missing in Indian diplomacy, that our earlier governments could not understand the power of this part of our soft diplomacy, that we have such a power. Like, you know, in Britain, there was industrial revolution, and because of that industrial revolution, Britain, expanded its influence all over the world. The same way, we had our ancient influence over the world, like Buddhism spread many parts of the world, and Buddhism has been accepted in many countries of the world. But you have to, extend this influence, and especially at a time when India is looking for its rightful place in the world. India is advocating that there should be reform in United Nations Security Council, and India is permanent member. You need to show something to the world that yes, this is our contribution to the world, and through this contribution we also give a message to the world of peace and cooperation. Because the modern diplomacy has been centering around two poles after Second World War, and two poles were fighting for their own area of influence. But India has been a country, and Indian diplomacy has been a force that was always telling that you should give justice to all the countries, either it is powerful developed countries, or it is a developing country, or their least developing country. And that is why we have been telling for long time that voice of developing countries should be there. And recently you have heard voice of global. Before that we have been non-aligned movement. So I think the whole Indian diplomacy saw extension when the world accepted that yes, there should be International Yoga Day, and 21st June was accepted as International Yoga Day by vast, overwhelming majority. Most interesting thing that no country opposed it. Some countries had reservation, but no country opposed it. So that is, I think, the biggest victory of India, that our diplomatic maneuvering all over the United Nations have been accepted in a positive way. Not through any coercion, not through any economic power, not through any brutal weaponry power, but it was accepted as a voice that is sane voice, that is a voice that is telling you to move into peaceful distance, and that is the voice that is telling you that big or small, all countries should cooperate. And yoga gives power to individuals, the leaders, the diplomats, officials, and even the people. Because most of the times wars take place because people are not in sync with the words of peace, or government is not in the sync with the requirements of peace. They want their own influence. But yoga is part of life where people and the government and official both can think, look inside, and they can use their own way of diplomacy and extending the area of influence. I think this was the biggest message, that how India can be a messenger of peace in the world. जी बिल्कुल अखिलेश जी, मैं आपसे कुछ बातें समझना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है योगा को जिस तरह से पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, जाहिर तौर पे भारत के लिए एक गौरवशाली मैं कहूँगा ऐतिहासिक पल भी है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में जो योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका नेतृत्व करेंगे। पहले प्रधानमंत्री जी की पहल पर दुनिया ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन शुरू हुआ, और अब यूएन में प्रधानमंत्री जी आज कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से योग ने आर्थिक स्वरूप धारण किया है पूरी दुनिया में, और उसमें भारत की भूमिका, इसका उल्लेख आज उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने अपने संबोधन में किया है। किस तरह से आर्थिक स्वरूप
जो बदला है योग ने पूरी दुनिया में, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, निश्चित तौर पे योग जो प्रैक्टिस है, योग की प्रैक्टिस में आपको चाहिए जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स को भी प्रैक्टिस करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ के, हमारे देश के जो लोग हैं योगा में काफ़ी महारत हासिल किए हैं। कई योगा के इंस्टीट्यूट हैं हमारे, जैसे मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट ही को ले लें, और इन्होंने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया। और भारत की एक रणनीति रही है कि हर देश में योग प्रशिक्षित लोगों को भेजा जाए, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी तभी सफल होती है कि जब उसके साथ साथ जो देश की नीतियां हैं भी उसके अनुरूप बने, और जो देश में हमारी जो थाती है, जो देश में हमारी ये ताकत है, उस ताकत को योग प्रशिक्षक जो है हमारे, वो हमारी बड़ी ताकत है, हमारी सांस्कृतिक ताकत। और उन प्रशिक्षकों को दुनिया के विभिन्न देशों में भेज जाना, और दुनिया के विभिन्न देशों के अलावा हमारे देश में भी योग प्रशिक्षकों की मांग बढ़ना, उनके मांग के आधार पे नए नए प्रशिक्षु आना, और उसके बाद नए नए लोगों को योग की शिक्षा लेना, योग का प्रैक्टिस करना। तो इन सारे में एक आर्थिक गतिविधि जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही लोगों की संख्या किसी खास विधा बढ़ती है तो उसके इर्द गिर्द हमको ऐसी संरचना भी बनानी पड़ती है, वैसे क्या कहते हैं उपकरण बनाने पड़ते हैं। हालांकि योग में बहुत ऐसे उपकरणों की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सुविधाओं की जरूरत होती है जिससे हम योग कार्य को संचालित ढंग से कर सके। तो इन सारे, चाहे तो आप मैट्स ले लें, उसके अलावा उसके अनुरूप परिधान ले लें, इन सारे परिधानों की भी एक कह सकते हैं कि एक आर्थिक गतिविधियां होती हैं। और इन आर्थिक गतिविधियों के ले लें तो रोजगार का एक बड़ा सा इलाका, रोजगार का एक बड़ा सा क्षेत्र योग के माध्यम से भी खुला है। और निश्चित तौर पे जैसा कि उपराष्ट्रपति बोल रहे थे, उनका इशारा भी इसी ओर था कि योग सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे पुराने जमाने में अगर किसी एक गांव में एक पुजारी होते थे जो लोगों को कुछ शिक्षा देते थे, कुछ बताते थे, बल्कि अब पुजारी का काम नहीं है, एक बिल्कुल ही मॉडर्न आउटलुक और पुराने ट्रेडिशंस के बीच में तारतम्य स्थापित करने वाले एक आधुनिक विचार वाले लोगों की जरूरत है। और इसीलिए योग आज कहें कि एक आंदोलन भी है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा एक सकारात्मक पेशा है जिसमें कि बड़े पैमाने पे लोग आ भी रहे हैं, लोगों के आने की संभावना है, और इसमें और ज्यादा कह सकते हैं कि व्यापार उद्योग की भी You're right, Akhilesh. You know, the fact that the Prime Minister asserts it has become a global movement, it has also become an important avenue for professional growth. Something that I also came across, Ambassador, the size of the global yoga market, which was valued at around $38 billion in 2019, is projected to reach about $66 billion by 2027. So if we look at our own population, wherein we require more and more jobs in terms of employment generation in the area of commerce, in the area of entrepreneurship development, this is an important avenue. Very much so, because as we move forward and more jobs go to artificial intelligence, etc., perhaps the quality of life related employment opportunities would increase. And I foresee an India and a world where in every park there would be a yoga teacher, and conducting exercises and leading people to some kind of a group activity. And now, of course, commercialization of yoga has also taken place. We have to acknowledge that. If you go to Western countries, very high fees are charged by the yoga teachers, and that's why we see the figures in billions of dollars. But of course, that is also all right. This is a free market economy. But there should be options, and we should ensure that yoga remains in the reach of the common man. And at least I would not like that in India it becomes so expensive as it is in the United States to have some courses Absolutely. of yoga. Despite the popularity and commercialization, the collective spirit, Dr. Kumar, should remain of what yoga is believed to be in our country. जी लेकिन पवन जी, क्या आप चूंकि जुड़े हुए हैं संस्थान से, तो आप कैसे देखते हैं रोजगार की दृष्टि से, या हम आर्थिक स्वरूप में जो बदलाव आया है, आप कैसे बदलाव को महसूस करते हैं? कितना असर पड़ा है पिछले इन वर्षों में, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाना और शुरू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली भारत की योग पद्धति को, इसको आप कैसे देखते हैं, उस पहलू को? जी बिल्कुल, काफ़ी बदलाव आया है। जैसा कि मैं पिछले एक दशक से तो भली प्रकार से परिचित हूँ योग के क्षेत्र से, जैसी जैसी गतिविधियाँ चल रही हैं। पहले तो जो हमारा
माइंड सेट था, हमारा जो चिंतन था योग के प्रति, पहले तो वो बदला है। क्योंकि सामान्य जो योग का एक अर्थ लेते थे, लोग बोलते थे कि ये तो बुढ़ापे का काम है, बाद में योग करते हैं, उसके लिए बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन अभी जब समस्याएं देखी कि योग जो है शारीरिक स्तर पर भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चों के पढ़ाई को लेकर के है, उनकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने को लेकर के है, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने को लेकर के है, या हम युवाओं को देखें तो उनकी जो किसी भी जॉब प्रोफाइल में हेल्प करता है, उनके तनाव को घटाने में, उनकी जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। तो इसमें कई प्रकार के वर्ग हैं सर, जिसको हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से तो संपन्न हैं, उनके पास समय का अभाव है, तो वो चाहते हैं कोई हमें एक अच्छा योग शिक्षक मिल जाए, योग टीचर मिल जाए जो हमारे पास आ जाए, या हम उसके पास चले जाएं तो हम कुछ सीख लें शारीरिक स्तर से और मानसिक स्तर से, थोड़ा हमारे में परिवर्तन आ जाए, थोड़ा सकारात्मकता बढ़े जीवन में भी लेकर के। तो कुछ लोग तो हैं जो व्यक्तिगत किसी सेंटर पे जाके योग कर रहे हैं, तो कुछ सेंटर्स डेवलप हुए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने या कुछ अपना डिग्री किया, डिग्री करने के बाद ट्रेनिंग खोला, ट्रेनिंग कोर्स खोला, लोग उनके पास जाते हैं और योगा ट्रेनिंग लेते हैं और अपना हेल्दी होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रीलांसर काम करते हैं कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे जो योगा सेंटर पर भी नहीं जा सकते, तो वो टीचर को अपने पास बुलाते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टलियर भी है, अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उसका आना जाना, उसका समय जाता है, तो उसको आने जाने का व्यवस्था दी उन्होंने, कुछ उनको शुल्क दिया उसके लिए, तो एक प्रकार से उसकी भी आजीविका उनके स्तर पर चलने लग गई और इनका एक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उधर दूसरे योग शिक्षक के आर्थिक स्वास्थ्य में भी थोड़ा सुधार हुआ। तो ये क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ा है और ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा काफ़ी स्तर पर बढ़ा। जब कोविड के बाद तो अत्यधिक बढ़ा, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं, ये ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाकी दवाइयों का तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, लेकिन योग में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका सकारात्मक ही लाभ है, जो है उसका साइड इफेक्ट भी सकारात्मक ही है। जैसे एम्बेसडर कह रहे थे कि अमेरिका में लोगों को लुभाने के लिए योगा को अपनी तरफ कई तरह के स्पिन ऑफ्स किए गए, जैसे हॉट योगा, योगा लाइट, इस तरह के। तो खास करके यंगस्टर्स को आकर्षित करने के लिए योगा के तरफ कुछ इस तरह के प्रयास हमने भी किए हैं ताकि वो और ज़्यादा पॉपुलर हो और एक बार वो उससे जुड़ जाएं, फिर हम उनको और जो उसका कोर स्पिरिट है वो समझा सकें। जी जी हाँ, हमारे भारत सरकार की ओर से, आयुष मंत्रालय की ओर से कुछ पहल की गई, जैसे कि अनेक जो हमारे पास सिस्टम्स आयुर्वेदा के हैं या यूनानी के हैं, सिद्धा के हैं, तो उनके साथ कई सारे जॉइंट्स वेंचर भी चले कि अगर आप आयुर्वेदिक औषधियाँ खाते हैं, साथ में अगर योग अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ कैसा होता है। तो विभिन्न जो आयुष के केंद्र शासित बहुत सारे सिस्टम्स हैं और कुछ राज्य के स्तर हैं, तो अनेकों राज्यों में ये पहल की गई कि आयुर्वेद के साथ योग का अभ्यास, और हम कहते हैं कि यूनानी औषधियों के साथ योग का अभ्यास। तो इसमें देखा गया कि औषधियों का प्रभाव जो हो रहा था वो बढ़ गया अभ्यास के साथ साथ। और ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एम्स में भी चल रहे हैं, जो एलोपैथी के साथ भी योग के अभ्यास को जोड़ रखा है, जैसे उसमें प्राणायाम है, कुछ उसमें ध्यान की पद्धतियां हैं। तो देखते हैं कि जो पेशेंट्स का समय ज़्यादा लग रहा था और जो पेशेंट्स योग के साथ कर रहे थे उनका समय कम लग रहा है उसी समस्या को ठीक होने में। तो इसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आयुष मंत्रालय की ओर से एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड भी बना हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ योग सर्टिफिकेशन है कि अगर आप ये लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पास होते हैं, तो आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा मास्टर, योगा गुरु हो सकते हैं और उसके बिहाफ पर आप अनेक देशों में जा सकते हैं। उसके साथ आपको लाभ मिलेगा एक सर्टिफाइड, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय की तरफ से, कि आप एक सर्टिफाइड टीचर हैं, आपने एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग ली है, तो वो भी रोजगार में सहयोगी सिद्ध होता है। और बहुत सारे देश में भी कुछ संस्थाएं हैं जो विश्वविद्यालय आदि हैं, वहाँ पर भी योगा टीचर्स की नौकरियाँ निकलती हैं। बहुत सारे मेडिकल के भी फील्ड में, जैसे कि एम्स है या और भी आयुर्वेद के क्षेत्र के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी योग की पोस्टें निकल रही हैं। अभी तो शुरुआत में वो संविदा आधारित है, लेकिन आगे चलकर उसके प्रभाव को देखते हुए मुझे लग रहा है उसमें स्थायित्व आएगा और रोजगार बढ़ेगा। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो वेलनेस सेंटर हम कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जुड़े हुए जो आयुष के वहाँ पर प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जो वेलनेस सेंटर है
उसमें एक योग शिक्षक का भी व्यवस्था है और वहाँ के ग्रामीणों को वो योग भी सिखाते हैं। तो वो औषधि तो लेने आते ही हैं, साथ साथ योग का भी वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं और वो ग्रामीण स्तर तक पहुँच रही हैं। बिल्कुल। सो जैसा मनोज हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में भी। लेकिन टीना, मुझे एक लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है क्योंकि भारत G20 देशों की अध्यक्षता भी कर रहा है और ये साल G20 शिखर सम्मेलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आज यूएन में नेतृत्व करना, योग कार्यक्रम का उसका नेतृत्व करना, अमेरिका में उनका प्रवास जो इस समय है वो खासा महत्वपूर्ण है। उस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आप डिप्लोमेसी बहुत करीब से कवर करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बहुत लंबे समय से कवर करती हैं, एम्बेसडर साहब भी हैं। इस पहलू को भी मैं समझना चाहूँगा एम्बेसडर साहब आपसे कि जब भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, शिखर सम्मेलन कर रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने एक पहल योग के माध्यम से जो दुनिया को जोड़ने की है, इसको आप कैसे देखते हैं? And especially, to add to that, the context that the first day of your first state visit, you utilize to propagate yoga, you lead the celebrations in the UN headquarters, and from there on, you kick on with the serious talk on the bilateral relations to actually take it one level higher with the United States. I think the entire focus of our G20 presidency has been very well conceived, very well organized and very well directed, that how to reduce tensions in the world and how to enhance economic collaboration and prosperity and all that, and how to bring all the countries together. Now G20 is only 19 countries and European Union. Parliamentary ने कहा है कि African Union should be invited as a permanent member, more than 50 countries. Then this entire effort of Global South, no other G20 member till now has ever done that. So in practice as well as in saying, there is a effort that G20 should become a forum which deals with the problems of not only these 19 countries, but of the entire world. That is on one side. And then going to United Nations on the first day is also a message that we believe in United Nations, but United Nations is not fulfilling whatever expectations were there, and there are shortcomings in United Nations, and India brings so much more. India, of course, is a nuclear weapon power, and all the criteria, permanent members of the UN Security Council is always something which should be just offered to India without any controversy. And this is another aspect that how India has a role of leadership in this world which has more than 200 nations. So this brings a new dimension to that India's leadership role in the world. And it's significant, Ambassador, because the Prime Minister is leading the celebrations for the first time in the United States. He's on a first state visit. How crucial is this visit to America? How is it going to elevate India-US ties, and especially in the area of emerging technologies? This visit is extremely important because it is future-oriented. If we look at human history, the last 1 or 2 centuries or more, countries used to occupy other countries. The whole colonization, etc. took place. Then there was an effort to control the physical resources, mines, water. But in the future contestation, those countries will be powerful, strong, dominant, who control critical and emerging technologies, knowledge industry, artificial intelligence, metadata, etc. Now, it is very important. America has a lot of strengths there. India has a lot of strengths because we have talent, we have manpower, we have skills, we have entrepreneurship, and America has money and an environment which ecosystem which enables these things to come up. So if India and United States work together with a future orientation of developing critical and emerging technologies together and sharing the patents, etc.,
I think it is a absolutely game changer for the future of our country as well as of democracies. Akhilesh, if you can hear us, and because we moved from the discussion on yoga to how important this visit of the Prime Minister is also in context of the India-US relations, as someone who's covered India-US relations for several years, you've tracked the development, how the relationship has been an upswing over the last few years, particularly. How significant is it going to be in terms of some of the areas in which we have differences? We see every now and then when the Prime Minister visits America, there are some voices of criticism. There is a section which wants the US President to discuss with the Prime Minister certain areas. So how do you see that also panning out in this particular visit of the Prime Minister? Natural, Tina, because India and US both are democratic countries, and while US claims that it is the oldest democracy, India is the largest democracy of the world, and though we also claim that we are mother of democracy. So in that way, these things are very natural, that when two democracies, when the leaders of two democracies and officials of the two democracies meet, they discuss many things, and they discuss international issues. They discuss issues that are affecting population of both the countries, and there are voices of dissension from Indian side in America, from American side in India, from Americans inside America, from Americans inside India. So these are very natural part of interaction, and in that way what I get that India deals with it very normally, and Indian diplomats and Indian leaders know that these are the issues that will be on the plate. And so there is much prior, preparation about all these things. And everyone in the world knows that India is, holding elections, at every 5 years or whenever it is required. It is one of the major successes of India that has been developing countries that has got independence just 75 years before, and that we have come so far. So the issues will be there inside the country, and issues will be there with other countries also. But this is the best way of leadership of the two countries to have a dialogue and raise issues about whatever are the uncomfortable situations, and those situations will be ironed out. And that this is the point of time when India is also confronting one thing, that like Russia-Ukraine conflict. In Russia-Ukraine conflict, India has a stand. India has been telling that dialogue and diplomacy should be the key of resolving the issues. But not all other countries, like even the West America, they are giving weapons to Ukraine, and this is also adding fuel to the fire. Other side, some other countries also trying to take advantage of the situation, like taking advantage of the disrupted supply chain. That is why India has always been telling that there will be decentralization of supply chain. Akhilesh ji, and in that way, role of America and the West Akhilesh is very ji, crucial. Akhilesh ji,